इम्पोर्टेंट थ्योरम, ठीक है, जिस थ्योरम का मेन फैक्ट ये था दैट इफ़ वी ड्रो अ सर्कल and a tangent on that circle, then definitely there will be a point of contact and a radius is drawn from the point of contact, then the angle between the radius and tangent is always equals to 90 degree, right? So you must know this fact to solve some questions, है ना. ये fact useful रहेगा आगे future में. तो ये कौन से questions में useful रहेगा? Let's write down a question. If PQ is a tangent to a circle having center O and radius 7 centimeter at point A, then find OP if AP equals to 24 centimeter. See here, in this question it is given that PQ is the tangent to a circle. Okay, so let's draw a circle. This circle is having center O and radius equals to 7 centimeter, and the PQ tangent is touching the circle at point A. So let it is Q, it is A, it is P, right? Now we have to find OP. We have to find OP if AP equals to 24 centimeter. Okay, and the radius is given as 7 centimeter. So students, you can clearly see the figure related to this question, and here it is asking us to find OP. So do anyone getting a clue that how to find the OP here? Who's there who can tell me the approach to solve this question? There's need to find OP here, right? Okay, yes, Anmol. Sir, by theorem sir हम कह सकते हैं a tangent to a circle is always perpendicular from point of contact. तो सर OA से पता बनाना है. We should draw OA, right? Okay. परपेंडिकुलर हो जाएगा सर बाय थ्योरम. किसके साथ? सर QP के साथ. QP के साथ. तो we can say that by theorem, and what is the statement of the theorem? That a tangent to a circle is always perpendicular to radius थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. और इस थ्योरम से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर? OA is perpendicular to QP, and another meaning of is this angle OAP equals to 90 degree, है ना? We are getting this information. Okay, so we are having this angle is 90 degree. Now how can we find the OP here? Sir, OAP is a right angle triangle. OAP is a right angle triangle. Agree. Sir, OA 7 centimeter is a radius है. OA will be 7 centimeter because it is the radius of circle. Very good. OA is equals to 7 centimeter, and triangle OAP is a right angle triangle. So by PGT, what can we write by PGT? So we can write OP square is equals to A square plus 2P square. How did you find that OP is the hypotenuse? Sir,
राइट एंगल के सर अपोजिट साइड है. Yes, this side is existing just opposite to right angle. That's why it is the hypotenuse. So we can write that OP square is equals to OA square plus AP square. So we need to find the OP. That's why we will keep it as it is. OA is equals to 7. That's why we can write it 7 square here. And AP is equals to what? 24. That's why 24 square is here. So OP square is equals to 49 plus 576. So OP square is equals to 625. And that's why OP is equals to 25 centimeter. So by this we got the value of OP, that is 25 centimeter. This is the use of the theorem which we have studied yesterday, right? So without this theorem we can't solve this problem, right? You know that, because we will not be able to say that this angle is 90 degree, and without getting this angle is 90 degree we can't say that the triangle is right angle triangle, and we will not be able to use PGT in this triangle. So that's why by only this theorem you can solve this question, and this is the application of that theorem. Okay, so it is a suitable example for the application of that theorem which we have studied yesterday. Are you getting this answer? कोई डाउट किसी को? Write down. आपको भी ये मेक श्योर हो जाना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन से आप ये डायग्राम बना सकते हो ना, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट, है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उससे आपको फिगर बनाना हो तो आपको आना चाहिए। Is it done? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको नोटिस करना। यहाँ ये जो एरो मैंने बनाया है इसकी जगह अगर इक्वल लिख दूँ तो कोई दिक्कत? इस एरो की जगह अगर इक्वल लिख दूँ तो कोई दिक्कत? व्हाट इज़ द मीन ऑफ एरो? क्या क्या जानते हो आप? ये जो सिंबल इसका क्या मीनिंग जानते हो? नेक्स्ट स्टेप कह दो या कैन बी कंक्लूडेड एज। इसका अगर मीनिंग समझे तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और अगर मैंने इक्वल लिखा तो क्या मिलेगा? देखो समझना बेटा, ये मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा
इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर ऐसे लिख दिया तो पता है जो ये लिख रहा है उससे क्या बात सामने आ रही है, उससे ये बात सामने आ रही है कि ओपी की वैल्यू भी 625 है, ओपी स्क्वायर की वैल्यू भी 625 है, 625 इज इक्वल्स टू व्हाट 25। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। सो कई बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं एग्जाम में, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, है ना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हो कि आप कौन सा सिंबल यहाँ अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इवन यहाँ पर भी जैसे अभी यहाँ इक्वल लगाया हुआ है, इक्वल की जगह आप लगा देते हो एरो और एरो की जगह लगा देते हो इक्वल, अपनी अपनी प्लेस है, अपना इंपॉर्टेंस है, कहाँ क्या अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद में मैं उसे रॉन्ग कर देता हूँ तो आपको डाउट होता है कि यहाँ रॉन्ग क्यों किया हुआ है, वो वैलिड है वहाँ पर रॉन्ग करना, क्योंकि आपने जो स्टेटमेंट लिखा है आप दिमाग में भले ही कुछ और सोच रहे हो लेकिन जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो अलग बात है। दैट्स वाई इन चीज़ों का ध्यान रखना। चलिए, तो आपको इस थ्योरम की एप्लीकेशन समझ में आई? कोई डाउट? नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आपसे मेरा, हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल पैरेलल टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ टू ए सर्कल एट अ टाइम। एक सर्कल पर एक बार में हम मैक्स टू मैक्स कितनी टेंजेंट्स पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं? 1 पेयर, एंड दैट मीन्स 2, राइट। एक बार में एक समय पर हम किसी सर्कल पर कितनी पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 2, ठीक है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। और इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाने से जो कोड बनेगी दैट विल बी एक्चुअली डायमीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नोट डाउन, नोट, we can draw maximum 2 parallel tangents to a circle at a time. In the next line, those parallel tangents will always be possible at end points of diameter only. In the next line, in the other way, we can say that line segment joining point of contacts of parallel tangents will always be a diameter. Will always be a diameter. ठीक है, एक बार पढ़ लो अच्छे से इस नोट को और कोई डाउट तो पूछो। पैरेलल टेंजेंट्स हमेशा डायमीटर के एंड पॉइंट पर ही बनेगी और पैरेलल टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने से
जो कोड हमें मिलेगी उसे हम डायमीटर कहेंगे, मतलब दैट कोड विल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर दैट हाउ मेनी पैरेलल सीकेंट्स आर पॉसिबल मैक्स टू मैक्स टू ए सर्कल. आर यू श्योर? राइट ऑन द नोट. We can draw infinitely many parallel secants to a circle at a time. At a time. Okay. Now the next topic is लिखो number of tangents to a circle. In this first point, उससे पहले एक क्वेश्चन. इफ देयर इज अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल देन हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. आर यू श्योर? राइट डाउन द नोट. नोट मतलब फर्स्ट पॉइंट. वी कांट ड्रॉ एनी टेंजेंट to a circle which passes through a point inside a circle. Inside a circle. नेक्स्ट पॉइंट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल देयर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑन अ सर्कल. 1. राइट डाउन. ओनली वन टेंजेंट is possible passing through a point on circle. Passing through a point on circle. For the third statement, the question is how many tangents we can draw passing through an exterior point. 2. 2 tangents are possible passing through an exterior point. Write down. We can draw only 2 tangents passing through a point outside the circle. That means exterior point. आगे लिखना that means exterior point, क्योंकि आगे मैं इसी वर्ड का इस्तेमाल करूँगा exterior point. A point which exists outside the circle is known as exterior point. So you got to know that 2 tangents are possible from an exterior point, right? Now here's a question for us, for you and me also, that if we ever want to calculate the length of tangent, है ना, अगर एक एक्सटीरियर पॉइंट से
टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही है, सपोज करते हैं पी क्यू एंड पी आर, 2 टेंजेंट्स आर पॉसिबल, ठीक है, और दिस इज एस, दिस इज टी। तो हम इस टेंजेंट की लेंथ किसे मानेंगे? यहाँ से 2 टेंजेंट बन रही है, पी क्यू या पी एस कह दो, पी आर या पी टी कह दो, 2 टेंजेंट बन रही है, इनकी लेंथ किसे बताएंगे? मैं इसकी लेंथ पी आर बताऊँ कि पी टी बताऊँ? तो इसकी लेंथ बन जाएगी पी आर। कभी भी किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो द डिस्टेंस बिटवीन एक्सटीरियर पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज द एक्सटीरियर पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही क्या कहा जाता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो लिखो हेडिंग लेंथ ऑफ टेंजेंट। निकलती है, लेकिन कहाँ तक? अब कोई कुछ आगे तक लेगा, कोई पूरे ही आगे तक ले जाएगा, तो एक फ़िक्स लेंथ बताने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। तो मैथमेटिशियंस ने उसकी फ़िक्स लेंथ क्या बताई है? पी आर बताई है, क्योंकि ये लेंथ सभी के पास सेम आएगी, ये लेंथ सभी के पास सेम आएगी। लेकिन अब कोई यहाँ से यहाँ तक ही लेके जाएगा, कोई इससे थोड़ा सा आगे, कोई इससे थोड़ा सा आगे, तो सबके पास एक सेम लेंथ कैसे मिलेगी? दैट्स वाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को ही या डिस्टेंस को ही क्या कहा गया? लेंथ ऑफ टेंजेंट कहा गया। इसमें नहीं मान पाएंगे क्योंकि ये सर्कल के पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है और हम यहाँ से एक्सटीरियर पॉइंट से बना रहे हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात केवल तभी की जाती है जब आप एक एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। अब अगर इसमें आप ये कहते हो कि मैंने इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की है और ये आर पर जाकर के टच कर रही है, तो आप कह सकते हो पी आर इज़ द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अगर आप क्यू से करोगे तो क्यू आर मानी जाएगी, अगर आप एस से करोगे तो एस आर मानी जाएगी, राइट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का कॉन्सेप्ट तभी कंसिडरेबल होता है जब आप किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हो। इज इट क्लियर? तो हेडिंग लिखी आपने लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लिखो इसमें व्हेन अ टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट to a circle then length of tangent will be equal to distance between exterior point and the point of contact. नेक्स्ट टाइम लिखो as in following figure if tangent is drawn from P, if tangent is drawn from P then PR is length of tangent. PR is length of tangent. नाउ डायग्राम बनाओ ये वाला।
नाउ इसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है हमारे लिए, दैट मैंने अभी बताया आपको कि एक्सट्रे पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनती हैं, ठीक है, और मैंने आपसे ये भी कहा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो एक्सट्रे पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक मानी जाती है। तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो एक्चुअली कभी भी एक्सट्रे पॉइंट से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उनकी लेंथ इक्वल ही होती है, दे आर ऑलवेज इक्वल। और ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम की तरह रहेगा, इसे हमें प्रूफ भी करना होगा, तो अभी प्रूफ करेंगे। तो अगर आपने लिख लिया है तो हम लिखते हैं थ्योरम and the statement of theorem is tangents drawn from an exterior point to a circle are always equal. Now see here, how will we prove this? To prove this, first of all, we have to take a figure in which we have to construct 2 tangents from an exterior point. As we know that 2 tangents are possible from an exterior point maximum. So let P is the exterior point and Q and R are the points at which those tangents are meeting with circle, and O is the center of circle. So if I ask you what will be the length denotion for this tangent PQ, and what will be the length of denotion for this PR. So according to this theorem we have to prove that PQ is equals to PR. This is our target, right? So first of all, let's write the information which are given to us. First one, O is center of circle, tangents from exterior point P are meeting the circle at Q and R, and now we have to prove that PQ is equals to PR. So just concentrate here. How will you prove this? This is another important theorem for which you should learn how to prove this, right? We will use the theorem also, but first of all you should learn how to prove. So to prove this, I have to join O means center with both point of contact and the exterior point also. So in this process I am writing, let join O to P, Q and R. Okay, now see here, you should keep remember that what is our aim. Our aim is to prove that PQ is equals to PR. Now can you think that these 2 sides are actually the corresponding sides of 2 triangles, and whenever there is need to prove that corresponding sides of 2 triangles are equal, then always we have to use a method that is known as congruency. So we have to look that is it possible to prove that these 2 triangles are congruent or not. Okay, so before that if we try see what information we are having right now. So if we want to prove these 2 triangles are congruent, first of all we have OQ is equals to OR, because that radii of same circle. OP is equals to OP common. So we are having equality of 2 corresponding side, but there is no SS rule, right? है ना, हमारे पास कुछ और भी होना चाहिए. So do we have any other information, and what is that?
ORP equals to OQP and that is equals to 90 degree. These both angles will be equal to what? 90 degree. And why are you saying this? By the theorem that a tangent is always perpendicular to the radius through point of contact. So we will write that by theorem a tangent to a circle is always perpendicular to radius through point of contact. And with this theorem we can write that angle OQP is equals to angle ORP, that is equals to 90 degree. Can we see this? These two angles are 90 degree. Now can we prove that these two angles are congruent to each other? And by the rule RHS. Yes, RHS is the one of the criteria among 6 criterias of congruency. That's why. Now let's talk about the triangles. So in triangle ORP and OQP, so which parts of these two triangles are equal? First of all, OR is equals to OQ, the region of radii of same circle. Next one, that OP equals to OQ and OR, sorry. OQ and OR are equal. OP equals to OP, that the reason behind it, common. And angle ORP is equals to angle OQP, that is equals to 90 degree. Right? So by these facts we can say that by RHS rule, triangle OQP is congruent to triangle. Now let's find the naming of the another triangle, right? So angle Q किसके इक्वल है? Angle R. So should I write R in the mid? Angle O किसके इक्वल होगा? एंगल O के इक्वल होगा कि एंगल P के इक्वल होगा? ये थोड़ा डाउट हो सकता है ना, लेकिन इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं अपन? लेट्स सी. देखो OR और OQ ये दोनों अगर फर्स्ट साइड मान ले दोनों ट्राइंगल की, दिस इज़ द सेकेंड साइड एंड दिस इज़ द थर्ड साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, राइट? सी है. अगर आपको डाउट है नेमिंग में तो वो मुझे सिखाना होगा. सो ये एंगल जो O है वो साइड फर्स्ट और साइड सेकंड के बीच में बन रहा है. यहाँ साइड फर्स्ट और साइड सेकंड के बीच में कौन बन रहा है? एंगल O. दैट्स वाई यहाँ पर O के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल आएगा? O ही आएगा. Q के करस्पॉन्डिंग R आएगा और P के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? P आएगा. So that's why triangle OQP will be congruent triangle ORP, and by CP/CT, that means corresponding parts of congruent triangles, we can say that PQ is equals to PR. And so we have proved that if two tangents are drawn from an exterior point, then their length will always be equal. Is it clear? Write down this. So first of all you have to accept that if two tangents are drawn from an exterior point, then they will always be equal. ये आपको mentally accept करना होगा ताकि फ्यूचर में इस पर रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे सॉल्व कर सको. और आपको इसे प्रूफ करना भी आना चाहिए, जो कि बहुत सिंपल है. यू कैन सी दैट कि एक थ्योरम और एक स्टेप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से इजीली ये प्रूफ हो गया. कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत इजी सा टास्क है. तो ये थ्योरम भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना फर्स्ट थ्योरम था, है ना? ये दोनों ही थ्योरम्स बहुत इम्पोर्टेंट है. लेकिन ये जो हमने प्रोसेस किया है, इस प्रोसेस से हम केवल यही बात कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, हम और भी बातें कह सकते हैं. और क्या है मैं आपके सामने रखता हूँ. देखिए, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह के ये तो बता दिया कि PQ इज इक्वल्स टू PR, लेकिन और क्या क्या पार्ट आ सकते हैं अगर आप नोटिस करें. तो मैं आपसे पूछता हूँ कि कैन वी से दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल? आर यू श्योर? और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम इस OP को इस QPR का क्या बता सकते हैं? एंगल बाइसेक्टर. तो इट मीन्स ये हमेशा होगा. प्रूफ हो गया तो हमेशा होगा. दैट मीन्स
line segment joining the center and the exterior point will always bisect the angle between tangents. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है इसी प्रोसेस का, जिस प्रोसेस को हमने किसके लिए किया, टेंजेंट्स की लेंथ को इक्वल प्रूफ करने के लिए प्रोसेस किया. अगर हमें इस बात को भी प्रूफ करना पड़ जाए दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सटीरियर पॉइंट, लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड द एक्सटीरियर पॉइंट ऑलवेज बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, तो भी यही पूरा प्रोसीजर होगा. बस CPCT में लास्ट फाइनली आप क्या लिखोगे, एंगल QPO इज इक्वल्स टू एंगल RPO. सेम प्रोसीजर यू हैव टू फॉलो, राइट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हुआ इसी स्टेप से. नेक्स्ट, इसी तरह से क्या ये कहा जा सकता है कि एंगल QOP विल बी इक्वल टू एंगल ROP बाय द CPCT. सो अगेन दीज टू एंगल्स आर इक्वल. सो व्हाट इज द रोल ऑफ OP फॉर द एंगल QOR? इट इज अगेन एंगल बाइसेक्टर. सो the line segment joining center and the exterior point always bisect the angle between the corresponding radii when two tangents are formed, right. ये भी एक conclusion निकला. और एक और conclusion है, the next one you can see that if we draw two tangents from an exterior point and we draw the corresponding radii also, then a quadrilateral is formed. Can you see here? Here the name of the quadrilateral is OQPR, right. This quadrilateral, this is a special type of quadrilateral, है ना. आपने बहुत सारे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में सुना होगा, स्पेशली जैसे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, है ना, रोम्बस, ट्रेपेजियम, स्क्वायर. एक और होता है दैट इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल whose all vertices exist on the circumference of circle, right. लेकिन उसकी एक खास बात और होती है, and that is what the sum of opposite two angles of that quadrilateral will always be equals to what, 180. You can see here angle Q is equals to 90, angle R is also equals to, and these two are opposite angles, so their sum is being equal to 180. Since the sum of opposite angles being 180, that means this is a cyclic quadrilateral. And if one pair of opposite side is are supplementary to each other, then we can surely say that the remaining pair of opposite angles are also supplementary to each other. So that's why this quadrilateral will be a cyclic quadrilateral. Is it clear? So इस प्रोसेस से हम तीन बातें बता सकते हैं. पहली बात, the tangents drawn from an exterior point to a circle are always equal. Second बात, the line segment joining center and the exterior point will always the bisect angle between the corresponding tangents, and the line segment joining the center and the exterior point will always the bisect angle between corresponding radii. And the fourth point is that if two tangents are drawn from an exterior point and corresponding radii are formed, then a quadrilateral will be formed, and that quadrilateral will be a cyclic quadrilateral. To prove the cyclic quadrilateral ये प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, उसकी तो प्रोसेस बहुत ईजी है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है तो आपको उसको 90 डिग्री बताना पड़ेगा. वो कैसे बताओगे? बाय द थ्योरम. ये 90 डिग्री बताना पड़ेगा बाय द थ्योरम. जैसे ये दोनों 90 आ गए, आप इन दोनों का सम कितना बता सकते हो? 180. और अगर क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर का सम 180 है तो इट इज़ ऑब्वियस कि सेकंड पेयर का सम भी 180 ही आएगा. इट्स बिकॉज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ इस क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. सो लेट राइट सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स. सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स. In the first one, line segment joining center and exterior point will always bisect the angle between tangents drawn from
that exterior point. Second conclusion, line segment joining center and exterior point will always bisect the angle between corresponding radii passing through point of contacts of corresponding tangents. Third, if two tangents are drawn from an exterior point to a circle from an exterior point to a circle and radii are also formed passing through point of contacts then a quadrilateral is formed which will be a cyclic quadrilateral. Which will be a cyclic quadrilateral. Okay, so these three are main conclusions from this process of proof, you can say. और थर्ड वन के आगे आप लिख लो नीचे ब्रैकेट में, थर्ड वन के नीचे ये केवल आरबीसी वाले लिखना, जस्ट फॉर नॉलेज, नॉट टू यूज़ इन एग्ज़ाम. सीबीएसई स्टूडेंट कर सकते हैं. जस्ट फॉर नॉलेज बट नॉट टू यूज़ इन एग्ज़ाम. कौन सा वाला? ओनली थर्ड वन वाला, राइट है ना. फर्स्ट और सेकंड तो यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से हो कि there are two tangents drawn from P, that is PQ and PR, and O is the center of circle, and this angle is equals to 80 degree, then what will be the angle QOR? अगर ये फाइंड करना हो तो वैसे तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं आंसर क्या आएगा. क्या आएगा आंसर? 100 डिग्री, बिकॉज इन दोनों का सम कितना होगा?
180 होगा तो ये कितना होगा 100। ये बात इजी सी है, लेकिन इसे हमें आरबीसी स्टूडेंट्स को जो है इसे एक प्रोसेस से सॉल्व करना होगा, और वो प्रोसेस क्या है? सीबीएसई स्टूडेंट डायरेक्टली कह सकते हैं दैट दिस क्वार्टल इज ए साइक्लिक क्वार्टल, दैट्स वाई सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज इक्वल्स टू 180, दैट्स वाई दिस एंगल इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। वो आप डायरेक्टली कह सकते हैं, लेकिन आरबीसी स्टूडेंट्स को क्या करना होगा? आपको बताना होगा कि बाय द थ्योरम दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90, एंड नाउ आफ्टर you have to apply the statement that sum of all four angles of a quartile is always equals to 360. So that's why angle O we can find, and that will be equals to 100, right? तो ये आरबीसी स्टूडेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है चीज़? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो तीनों चारों कंक्लूजन्स है ये समझ में आ जानी चाहिए, फिर हम इस पर क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिखें, आप एक क्वेश्चन लिखें। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड x अगर एक पॉइंट बाहर एक्सट्रीम पॉइंट से होगा सर, बट अगर एक्सट्रीम पॉइंट कभी नीचे की साइड में पास तो नहीं होता है, कहीं से भी हो, कितना ही पास कितना ही, कोई दिक्कत नहीं है। दो टेंजेंट बनेगी और दोनों लेंथ इक्वल बनेगी, कहीं पर कितना ही पास और कितना ही दूर ले लो। तुम सोचो, बताओ। यहाँ लो तो दो टेंजेंट इस तरह से बनेगी, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल बनेगी। कहीं पर भी ले लो आप, वो तो इक्वली बननी है। यस, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके, हु कैन टेल मी द अप्रोच ऑफ दिस आंसर? चलिए आप बताएं कीर्ति। एंगल क्यू एंड एंगल आर 90 डिग्री बाय द थ्योरम, ठीक है। आफ्टर दैट ओके, क्यू ओ आर की वैल्यू 110 डिग्री आ जाएगी। आफ्टर दैट नहीं, वो मतलब स्टेटमेंट कुछ और है, हाँ, लेकिन इससे आप कह सकते हो ओपी विल बी एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल एक्स होगा तो नेक्स्ट वाला भी एंगल एक्स होगा, और दैट विल बी इक्वल टू 2x एंड इक्वल्स टू 110, दैट्स वाई 55 आ जाएगा। चलिए, एक अप्रोच तो ये हुई, कोई दूसरी अप्रोच बता सकता है इसके लिए? द अनदर अप्रोच, ये एक सही अप्रोच है। नेक्स्ट अप्रोच अगर कोई आप में से बता सकें। हाँ चिराग। हाँ, एक्चुअली किसका सम, किन किन का सम? क्यू ओ पी, दैट इज़ एक्स। हाँ, पी क्यू ओ ओ पी क्यू, ठीक है।
लेकिन x20 है ही नहीं। 70 एंगल QP आ रहा है यहाँ, नोटिस करो आप, इट इज़ नॉट QPO। आंसर, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर क्लियर कर देता हूँ, इसका आंसर क्या आएगा 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। तो बताओ कौन बता सकता है, हाउ कैन वी सॉल्व दिस? अनिरुद्ध। सर इससे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से। हम्म सर जो ट्रायंगल है OQP, सर उसमें OQP है एंगल 90 डिग्री। OPQ सर बाइसेक्ट कर लिए OP एंगल QPR को, तो सर वो 35 हो जाएगा। ओके, ये एंगल कितना हो जाएगा 35, ठीक है, एंगल सर प्रॉपर्टी से सर हम x निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही। तो दिस इज़ अनदर अप्रोच, राइट, है ना। जैसे हमने यहाँ पर आके एंगल को बाइसेक्ट किया, वैसे यहीं पर भी एंगल को बाइसेक्ट करके हम अपनी बात कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। तो कर सकते हैं आप। इसका आंसर क्या आ रहा है 55। तो इसे सॉल्व करके बताऊँ क्या हो जाएगा? आर यू श्योर? ओके, ठीक है। स्टेटमेंट क्या आएगा सर, ये बाइसेक्ट करके वही लिखेंगे ना, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग सेंटर एंड एक्सटीरियर पॉइंट ऑलवेज बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। तो ये टेंजेंट के बीच का एंगल है 70, इसको बाइसेक्ट करके 35 डिग्री बन जाएगा। समझ में आया? ओके, क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन नोट डाउन करो। वन टू थ्री फोर 6 and 7, 1 2 3 4 6 and 7, this is the homework। 7.2 sorry 10.2